Hello and welcome. My name is Manish Katiyar, Assistant Professor at Axis Institute of Planning and Management, Kanpur. So, we were discussing about working capital. In the working capital chapter. We have understood what is current assets, what's current liabilities, what is working capital cycle, and there were various formulas to calculate the number of days for which we require working capital. And on the very latest lecture, I have shown you a table under which we have to calculate the actual amount of working capital, that is current assets and current liabilities. Now, almost all the basic point of working capital has been covered. You know the working capital, it is the difference between current assets and current liabilities, and type of working capital on the basis of value. And you know very well that fixed working capital, fluctuating working capital, and that is permanent working capital and fluctuating working capital, gross working capital and net working capital. Through a balance sheet type of statement, not that was not actually balance sheet type statement, under which we have understood what is the current assets and current liabilities. So, now we are moving forward, and this is lecture number 4 of unit 1, working capital overview, policy, profitability, liquidity and trade off. Basically, majority portion are from theory side. In lecture number 3, we have already covered the numerical problems. There was only one problem due to lack of time. So, I have shown you the calculations, how to calculate the number of days for which working capital is required. Now, working capital overview, policy, profitability, liquidity, trade off. Simply, management of working capital. The importance of working capital for an entity can be compared to importance of life and blood for a living body or of a lubricant fuel for an engine. This is simply a theory part. Suppose if they ask a question, a theoretical question in a working capital, then what will you write? This is the simple preface of that. As we already discussed that working capital is required for day to day activity. जैसे हम सभी को मालूम है कि वर्किंग कैपिटल हमको दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी के लिए चाहिए होती है. दिन प्रतिदिन की एक्टिविटी के लिए हमको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, तो वो कैसे पूरी होगी, उसी को उन्होंने एलेबरेट किया है बुक राइटर ने. द इम्पोर्टेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल फॉर एन एंटिटी कैन बी कंपेयर्ड टू importance of life blood for a living body or of a lubricant fuel for an engine. Working capital is required for smooth functioning of the business of an entity. Hence, the working capital needs adequate attention and efficient management. When we talk about the management, it involves 3 E's, that is economy, efficiency and effectiveness. Hence, the working capital needs adequate attention and efficient management. When we talk about the management, it involves 3 E's in economy, efficiency and effectiveness, and all these 3 are required for the working capital management. ठीक है, आगे. The scope of working capital management can be grouped into 2 broad areas, profitability and liquidity, investment and financing decision. Scope of working capital management, liquidity and profitability, and investment and financing. right? इसको स्टडी करते हैं. The scope of working capital management can be grouped into 2 broad areas, profitability and liquidity.
एंड इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। स्कोप ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है और इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। लिक्विडिटी मीन्स कि हमारे पास भी एक सफिशिएंट कैश बैलेंस मेंटेन हो, पहली चीज़। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब है कि उस कैश को हम प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें। फॉर अनइंटरप्टेड एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द डे टू डे बिजनेस ऑफ एन एंटिटी, इट इज़ इम्पॉर्टेंट to maintain liquidity of funds early. As we have already learned in previous chapters that each rupee of capital bears some cost. हमको भी मालूम है, जब भी हम वर्किंग कैपिटल रेज करेंगे तो कुछ कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होती है। So while maintaining liquidity, the cost aspects need to be borne in mind. मतलब कह रहे हैं कि अब हमारे पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है, जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज़्यादा है, या जितनी रिक्वायरमेंट है उससे कम है, तो दोनों ही सिचुएशन हमारे लिए सही नहीं है। एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल के बारे में बात हो रही है। ठीक है, ऑल्सो ए हायर वर्किंग कैपिटल में बी इंटेंडेड टू इंक्रीज द रेवेन्यू एंड हैंस प्रॉफिटेबिलिटी, बट एट द सेम टाइम unnecessary tying up of fund in idle assets not only reduces the liquidity but also reduces the opportunity to earn better return from productive assets. वो ये कह रहे हैं कि अगर सरप्लस आपके पास वर्किंग कैपिटल है तो उसको इफ़ेक्टिवली यूटिलाइज करिए, सेल्स प्रोडक्ट और सर्विसेज में उसको यूटिलाइज करिए जिससे आप प्रॉफिट कमा सकें, क्योंकि वर्किंग कैपिटल रेस करने में आपको कॉस्ट इनकर करनी पड़ रही है और वो कॉस्ट कहीं ना कहीं आपकी प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर रही होगी। बेसिकली जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री बेसिस पे एक इंडस्ट्री में कंपनियों को कंपेयर, सपोज हम सीमेंट इंडस्ट्री एग्जांपल लें तो अल्ट्राटेक और एसीसी को अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कौन सी कंपनी अपने फंड को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर रही है, वो चीज़ समझने वाली है। ठीक है, hence a trade-off is required between the liquidity and profitability, which increases the profitability without disturbing the day-to-day functioning. This requires 3 E's as discussed above: economy, efficiency in utilization and effectiveness in achieving the intended objective. ठीक है, आगे इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग। Working capital policy is a function of 2 decisions. First, investment in working capital, and the second is financing of the investment. Working capital कह रहे हैं कि investment और financing function है कि कितना amount we required to invest in particular production manufacturing activity and how that amount will be arranged. In majority of the cases, working capital is financed through short-term bank loans. With the level of investment in the current asset, it gives the owner of how much funds to be tied in to achieve the organization's objective, that is effectiveness of fund. Financing decision concerned with arrangement of fund to finance the working capital, it gives the answer when from fund to be sourced at lower cost एज पॉसिबल, दैट इज इकोनॉमी। कह रहे हैं जब से भी आप फंड अरेंज करें, जहाँ से भी फंड अरेंज करें, कोशिश करिए कि फंड अरेंजमेंट की जो कॉस्ट है वो कम हो। देखिए कम कैसे हो सकती है, कैसे कम हो सकती है? इंडस्ट्री में बैंक्स फाइनेंस कर रहे हैं तो बैंक्स भी एक स्पेसिफिक रेट से देंगे ना, सभी को स्पेसिफिक रेट से देंगे, 1-8% आधे % को वेरिएशन हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने फाइनेंसर के साथ में अच्छे रिलेशंस मेंटेन करने होंगे, एज एंड व्हेन जब आपको ज़रूरत हो आपके लिए फ़ंड वो अरेंज कर दें। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, पूरा का पूरा थ्योरी है इसमें।
अब यहाँ पे बात हो रही कि हमने कैलकुलेशन कर ली, इतनी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत है, अब कहाँ से लेके आ रहे हैं, बैंक से लेके आ रहे हैं। लेते समय देखना होगा कि हमें कॉस्ट कम से कम रहे, ज़्यादा अमाउंट हमको ना करना पड़े और कम दिनों के लिए करें, जिससे कि अल्टीमेटली इकोनॉमी की बात हो रही है, जो 3 E's हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। हाउ मच टू बी इन्वेस्टेड इन करेंट एसेट्स एज वर्किंग कैपिटल इज ए मैटर ऑफ पॉलिसी decision by an entity. It has to be decided in the light of organizational objectives, trade policies and financials consideration. Cost and benefit important concept होता है cost accounting में भी, कि कितना cost आ रही है वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए। सपोज 8% की फाइनेंस है और उससे कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। देयर आर नॉट सेट or fixed rules for deciding the level of investment in working capital. Some organization due to its peculiarity require more investment than others. Seasonal है, non seasonal है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। स्लो मूविंग गुड्स बना रहे हैं, हाईली डिमांड गुड बना रहे हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल एन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कंपनीज रिक्वायर मोर इन्वेस्टमेंट in working capital as they may be huge inventory in the form of work in progress. On the other hand, a company which is engaged in the fast food business comparatively requires less investment as inventory is to be of a perishable nature, मतलब जल्दी खराब हो सकती है, and most sales are cash sales. Hence, level of investment depend on the various factors listed below. Next slide में हम कंसिडर करेंगे। वो कह रहे हैं कि अगर आप फूड इंडस्ट्री में जाते हैं, सपोज इफ़ आपने बर्गर ख़रीदा बर्गर किंग से, इमीडिएटली बर्गर का पेमेंट किया, काम खत्म, तो क्या हुआ कि उसका कैश साइकिल बहुत छोटा है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी एग्जांपल, एक प्रोजेक्ट लिया, कंप्लीट होने में 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 6 साल लग रहे हैं, तो उनका साइकिल डिफरेंट है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री अलग है, वो यहाँ पे डिस्कस किया गया है। नेचर ऑफ इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन कंपनीज and breweries etc. requires large amount investment in working capital due to long gestation period. Infrastructure तो आपको समझ में आ रहा है। breweries companies मतलब the companies which are manufacturing the alcohols, बहुत सारी कंपनी है। यूनाइटेड ब्रूवरीज का एग्जांपल लें, यूनाइटेड स्पिरिट्स का एग्जांपल लें, एसोसिएट अल्कोहल का एग्जांपल लें, आप ग्लोबस स्पिरिट का एग्जांपल लें, तो उनको फ्रेगमेंटेशन कराने में लिकर को फ्रेगमेंटेशन कराने में एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड चाहिए, साल भर, 2 साल, 3 साल चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज होती है। तो उसके बारे में बताएं नेचर ऑफ इंडस्ट्रीज। टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल हैज़ लार्ज इन्वेंट्री एज कम्पेयर टू पेरिशेबल प्रोडक्ट। सही बात है। कंज्यूमर ड्यूरेबल मीन्स आपके पास सेल फोन है, वॉशिंग मशीन, टीवी है, एसी है। मैनेजमेंट वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस सर्विसेज। A manufacturing entity has to maintain 3 levels of inventory, that is raw material, work in progress and finished goods. देखिए मैन्युफैक्चरिंग और डिटेल में बता रहे हैं कि रॉ मटेरियल करिए, फिनिश्ड गुड्स में मैन्युफैक्चर करिए, फिर फिनिश्ड गुड्स बनाइए। ओनली इन द फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग स्टॉक आर कंज्यूमेबल रिस्पेक्टिवली। वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वेयर द सेल्स आर हाई देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ हाई रिसीवेबल्स एज वेल। क्रेडिट पॉलिसी, an entity whose credit policy is liberal has not only high level of receivables but may require more capital to fund raw material purchases as that will depend on credit period allowed by suppliers. Next है approaches of working capital। 3 अप्रोच हैं, एग्रेसिव, मॉडरेट एंड कंजर्वेटिव। एग्रेसिव मतलब बहुत ज़्यादा वर्किंग कैपिटल रखना, मॉडरेट मतलब एज एंड व्हेन, जब हमको रिक्वायरमेंट हो, जिसको हम जस्ट इन टाइम भी बोलते हैं स्टॉक के मामले में। एंड कंजर्वेटिव मतलब हम बहुत एग्रेसिवली फंड को बोरो नहीं कर रहे हैं बैंक से। एग्रेसिव, हियर इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल इज केप्ट एट मिनिमम इन्वेस्टमेंट इन करेंट एसेट्स विच मीन्स द एंटिटी डज होल्ड लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री। फोकस करना है यहाँ पे आपको। एग्रेसिव अप्रोच की आ रहे हैं जब हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये देख रहे हैं हियर द इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल केप्ट मिनिमल इन करंट एसेट्स विच मीन्स द एंटिटी डज नॉट होल्ड लोअर लेवल ऑफ इन्वेंट्री, फॉलो स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी, कीप्स लेस कैश बैलेंसेस एटसेट्रा। वर्ड पे फोकस करिए। स्ट्रिक्ट क्रेडिट पॉलिसी मीन्स
हमने अपने डेटर्स को क्रेडिट पीरियड अलाउ किया 21 डेज़ का, अगर 21 डेज़ में पेमेंट नहीं किया वी विल इम्पोज पेनल्टी ऑफ 5% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट। हम स्ट्रिक्टली पेनल्टी लेंगे भाई आपने, क्योंकि आप मेरे फंड को यूटिलाइज कर रहे हैं, ये मतलब है यहाँ पे। द एडवांटेजेस ऑफ दिस अप्रोच इज दैट that lower level of funds is tied in the working capital, which results in lower financial cost, but the flip side would be risk of stock out and that the organization could not grow, which leads to lower utilization of fixed assets. ये चीज़ ध्यान रखिए, बहुत स्ट्रिक्टली क्रेडिट पॉलिसी फॉलो करते हैं ऑर्गेनाइजेशन, बहुत स्ट्रिक्टली, नहीं करेंगे तो सर्वाइवल नहीं है, कट थ्रोट गला काट प्रतियोगिता है हमारे कंप्यूटर के साथ में, इसलिए बहुत ध्यान से चीज़ों को फॉलो करना होता है। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव अप्रोच, पहले थी फर्स्ट वन वाज एग्रेसिव, सेकंड वन वाज इज कंजर्वेटिव। अंडर कंजर्वेटिव अप्रोच ऑर्गेनाइजेशन चूज टू इन्वेस्ट इन हाई कैपिटल इन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में कह रहे हैं, उनका ये मानना है कि करंट एसेट्स में मैक्सिमम अमाउंट इन्वेस्ट करके रखो, करंट एसेट्स तो इजीली कन्वर्ट हो ही जाती हैं, जब चाहेंगे तब हम कैश में कन्वर्ट कर लेंगे, ऐसी थिंकिंग है। लेकिन फिर भी बात वही है, नेचर ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंड करता है। ऑर्गेनाइजेशन यूज टू कीप द इन्वेंट्री लेवल हायर फॉलोज लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज। लिबरल क्रेडिट पॉलिसी मतलब जैसे अभी रिलायंस जियो लॉन्च हुआ था, जब लॉन्च हुआ था उन्होंने 3 महीने के लिए फ्री सिम लीजिए, 3 महीने फ्री, लिबरल पॉलिसी थी। एक बार आदत तो पढ़ने दो आपको, वही चीज़ थी, लिबरल क्रेडिट पॉलिसीज एंड कैश बैलेंसेज एज हाई एज टू मीट एनी करेंट लायबिलिटी इमीडिएटली। द एडवांटेज ऑफ दिस अप्रोच आर हायर सेल्स वॉल्यूम, भाई उधार माल मिल रहा है हर आदमी लेगा। बिजनेसमैन क्या सोच रहा है कि पेनिट्रेशन कर रहा है मार्केट में, उसको इंटर करना है तो उधार क्रेडिट में सेल्स दे रहा है, बायर को क्रेडिट में मिल रहा है, ठीक है अपना पैसा लगाना नहीं है, मैन्युफैक्चरर सप्लाई कर रहा है, सेल करते हैं, ठीक। इंक्रीज्ड डिमांड ड्यू टू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी एंड इंक्रीज गुडविल अमंग द सप्लायर्स ड्यू टू पेमेंट इन शॉर्ट टाइम। द डिसएडवांटेज आर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, भाई जब हम यहाँ पे लिबरल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं, ये जब लिबरल पॉलिसी अप्लाई कर रहे हैं तो हमारी इंक्रीज कॉस्ट हो रही है, इसको ध्यान में रखेंगे। ऑफ कैपिटल, इन्वेंट्री, ऑब्सोलेंसेज, हायर रिस्क ऑफ बैड डेट्स, शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी इन लॉन्ग रन ड्यू टू लॉन्गर ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। तो नेक्स्ट अप्रोच है हमारी, और वो अप्रोच है मॉडरेट अप्रोच। दिस अप्रोच इज बिटवीन द अबव टू अप्रोच। अंडर दिस अप्रोच a balance between risk and return is maintained. Sir, risk and return, और रिस्क और रिटर्न को कंसीडर करते हुए हम लोग आगे चलेंगे। इन्वेस्टमेंट में भी हम लोग रिस्क एंड रिटर्न को कंसीडर करते हैं। अगर हमने क्रेडिट पे गुड्स बेचा है, सपोज हमारा डेटर पेमेंट करने नहीं आता तो वो मेरे लिए रिस्क है। सपोज वो डिफ़ॉल्ट कर देता है, रिटर्न आने में तो हमारी दिक्कत है। तो ये रिस्क और रिटर्न को स्टडी करने का कॉन्सेप्ट है, टू गेन मोर बाय यूजिंग द फंड्स इन वेरी एफिशिएंट मैनर। अ कंजर्वेटिव पॉलिसी implies greater liquidity, शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह के पैराग्राफ से जनरेट होते हैं। एंड लोअर रिस्क वेयर एज एन एग्रेसिव पॉलिसी इंडिकेट हाई रिस्क एंड पुअर लिक्विडिटी। एग्रेसिव पॉलिसी इंडिकेट हायर रिस्क एंड पुअर लिक्विडिटी। भाई जब लिक्विडिटी, क्वाइट ऑब्वियस सी बात, लिक्विडिटी तो कम होगी। हम अपने सप्लायर्स को उधार माल दे रहे हैं, जब उधार देंगे तो मेरे पास लिक्विडिटी कम हो जाएगी। अब उस लिक्विडिटी क्रंच को हम कैसे मैनेज कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कैसी है, सीजनल इंडस्ट्री क्या है। सपोज सीजनल इंडस्ट्री में आप देखते होंगे कि एक पर्टिकुलर शुगर का एग्जांपल है, पर्टिकुलर भाई शुगर की डिमांड तो पूरे ओवर द पीरियड ईयर रहती है, बट मैन्युफैक्चरिंग बड़ा लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होती है, अक्टूबर से मार्च तक की मैन्युफैक्चरिंग होनी है।
तो इस तरीके से मेंटेन करके चलना है कि वर्किंग हम अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकें, स्टॉक इस तरीके से मेंटेन करना, उनको हाई स्टॉक मेंटेन करने पड़ते हैं, इसलिए वर्किंग कैपिटल भी हमको ज़्यादा चाहिए होती है। मॉडरेट करंट एसेट्स पॉलिसी विल फॉल इन द मिडल ऑफ कंजर्वेटिव एंड एग्रेसिव पॉलिसी विच मोस्ट ऑफ द फर्म फॉलो टू स्ट्राइक एन अप्रोप्रिएट बैलेंस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ देयर ट्रेड और इंडस्ट्री। तो ओवरऑल आपको मॉडरेट, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव पॉलिसी में ये समझ के देखना है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, रिस्क एंड रिटर्न हमारा कितना आ रहा है। अगर रिस्क और रिवॉर्ड, रिस्क और रिटर्न हमारा सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो दिक्कत होगी। अच्छा, ये सारी की सारी चीज़ें नेचर ऑफ इंडस्ट्री जो बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें चेंज होती रहती हैं। लाइक अगर आप मोनोपोली इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा क्रेडिट पॉलिसी पे ध्यान नहीं देना है। एक मैं कंपनी का जस्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, कंपनी का नाम है बॉश, BOSCH, इट इज़ अ जर्मन कंपनी। और बॉश के संग में प्लस पॉइंट क्या है, मोनोपोली सेगमेंट में काम करती है, ऑटो एंसिलरी कंपनी है, मोनोपोली बिजनेस कर रहा है, तो उनके लिए ये पॉलिसीज़ अप्लाई बहुत ज़्यादा नहीं होंगी। लेकिन जो कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, फूड एंड बेवरेजेस इंडस्ट्री के एग्जांपल ले लिए, बहुत सारी कंपनियां फूड एंड बेवरेजेस में काम कर रही हैं, तो उनको इफेक्टिवली काम करना पड़ेगा। वरुण बेवरेजेस एक लीडिंग कंपनी है, इसको आप अगर आप कंपेयर करें वरुण बेवरेजेस को तो प्रताप स्नैक्स से कंपेयर करके देखें, तो ये जो कंपनियां हैं फूड सेक्टर में काम कर रही हैं, ITC से कंपेयर करें तो हाईली कम्पिटिटिव बिजनेस, हाईली कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, डाबर को देखें, पतंजलि देखें, तो यहाँ पे आपको इनको बड़ा एग्रेसिवली फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हमारी इंडस्ट्री मोनोपोली में काम कर रहे हैं तो हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, जो हम कर रहे हैं सब कुछ बढ़िया है। तो ये था पूरा का पूरा लेक्चर, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल, व्हाट इज़ हाउ टू कैलकुलेट वर्किंग कैपिटल, नंबर ऑफ डेज एंड एक्चुअल अमाउंट के टर्म्स में कैलकुलेट करना, कैश का साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल को स्टडी करना, और थोड़ा सा पॉलिसीज़ को लेकर स्टडी करने की बात करी गई है। और रिस्क और रिटर्न ट्रेड ऑफ में हमने लास्ट यूनिट में यही स्टडी किया है कि हम रिस्क और रिवॉर्ड को, रिटर्न को देखते हुए अपनी पॉलिसी क्रिएट करें, और पॉलिसी डिपेंड करती है आपके नेचर ऑफ इंडस्ट्री के ऊपर। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर नाउ, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस।